It's a Good Friday. It's a Good Friday. Let us be happy. Let us smile. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name, our Lord and our Father. Heavenly Father, you said where 2 or 3 are gathered, there you are. Father, we are beginning with you now because we know you are here with us. Send the Holy Spirit. Let the Holy Spirit take control. Let the Holy Spirit subdue the flesh. Make us see you. Today is a Good Friday. Today you shed your blood for us. The basis of Christianity. Oh Lord, that spirit in you, bestow it upon us in the name of Jesus. Father, even as we come here today, do not allow us to go out of this place without you touching us. The ability for us to behave Christ-like, oh Lord, bestow it on each and every one of us. In Jesus' mighty name. Heavenly Father, touch each and every one of us. Touch us, lead us, guide us. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. How much? Okay, I'll wait. Thank you. If your prayer is 5 minutes, then finish. In Jesus' mighty name. यीशु के नाम से आमीन। Actually, you have to forgive me. I'm not a preacher. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक पक्का प्रीचर नहीं हूँ, मनादी करने वाला नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना। Pastor asked me to do this, and please, any mistake I make, is the one that make. Just put ओके, it on. अगर कोई भी इससे गलती होगी तो मुझे पकड़ना, इसे माफ कर देना। ये पहली दफा कर रहा है, लेकिन इसी को पकड़ना, कि मैंने 40 दिन दिए थे तैयार करने के लिए। Thank you, Jesus. खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। I was given the book of Luke, और लूका की अंजील में हम देखेंगे Luke 23:34. और उसके 23वें बाब और उसकी 34वीं आयत में, Then Jesus said, Then said Jesus, यीशु ने कहा, Father, ऐ बाप, forgive them, इनको माफ कर, for they know not what they do. इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। And immediately after this, और उन्होंने his clothes parted. उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पे कुरा डाला। What are we talking about? और आज मैं इस पे क्या बात करना चाहूंगा? Jesus Christ, यीशु मसीह even on the cross of Calvary, when he was about going, और उस मकाम पे जहाँ सूली का मकाम है, उस पे वहां पे पहुंचे हैं, he's still forgiving. और आज उस मकाम पे पहुंच के भी वो हमें माफ करते हैं। He looked at the criminals beside him. और वो दोनों साइड से देखते हैं कि दोनों साइड पे जो है बदकार लोग लटकाए गए हैं, And he still gives them everything. और उन्हें भी वही पैगाम दिया जाता है। What is this? वो क्या है? This is love for humanity. और वो मोहब्बत है एक बने हुए इंसान के लिए। Even at that level that is supposed to be angry, और उस मकाम पे जहां पे एक गुस्से के साथ इंसान को होना चाहिए था, he kept his calm. और वहां पे भी वो खामोश और खामोशी को इख्तियार करते हुए रहे, Which is what he expects from each and every one of us. और आज वही वो मुझसे और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। Christianity is a way of life. और मसीहत एक जिंदगी का नमूना है, It is not a religion. और ये कोई मजहब नहीं है, It is not something group. No. और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। It's a spiritual thing. It is something that is inside of you. और वो चीज है जो आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। It is way of behaving. It is the way of life. और ये आपकी जिंदगी का तर्ज अमल होना चाहिए, आपकी जिंदगी किस तरह गुजारनी ये होना चाहिए। If by today और आज इस मकाम पे people cannot look at you और आज अगर आपको लोग नहीं देख पा रहे and say you are a Christian, और ये कह के कहते हैं कि आप मसीह हो, then there is a problem somewhere. और सब कहीं ना कहीं उस जगह पे कोई मुश्किल परेशानी जरूर है। Your life must be able to preach
forgiveness of sin और आपकी वो जिंदगी होनी चाहिए जिसमें आप गुनाहों को माफ करने वाले बने at every time. और हर लम्हा पे जहां पे भी आप हो। It is not as if, you see, even in the Bible, you were slapped और अगर आप खुदा के कलाम में देखते हैं तो आप and ये he पता चलता है turned the other cheek, so that if you want to slap me, slap me. और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। Christianity is not you beat me, I beat you. और मसीहत ये नहीं है कि तुम मुझे मारो और मैं तुम्हें मारूं Then you are the Lord. और फिर आप दुनिया के कहलाओगे। And the Bible says we are in this world, but not of the world. हम इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के नहीं हैं। So that love and forgiveness और वो प्यार और वो माफी करने का कर्ज must be in us at all times. और हमारे अंदर हर वक्त जमा मौजूद होना चाहिए। This will take me to repentance. और इसीलिए हमें आज तौबा करने की जरूरत है। Forgiveness in itself और माफी जो है अपने अंदर requires repentance. और वो अपने अंदर इस बात को साबित करती है कि हमें तौबा करने की जरूरत है। Turning away from sin और अपने गुनाहों से अपने मुंह को मोड़ना and moving towards God. और अपने गुनाहों को से मुंह मोड़ के दूसरी तरफ जाना। This we can see in the book of Luke. और यही हम देखते हैं लूका की अंजील में इसके Luke 24:47. और उसके 24वें बाब और उसकी 47वीं आयत के अंदर And Acts 2:38. और रसूल के माल और दूसरा बाब और उसके 38वें आयत में भी यही लिखा है। Because of time, ये repentance जो माफी है तौबा करने का अमल है requires you saying totally I don't want to do this thing. और तौबा का मतलब है कि अब मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा। If you are drinking, you take alcohol, अगर आप शराब नोशी करते हैं और आप उसे पीते रहते हैं and you want to say, oh, I don't want to take alcohol again. You want to repent from that sin of alcoholism. और उस जगह पे आप कहते हैं कि अब मैं इस चीज से तौबा करूं और दोबारा मैं इसे नहीं लूंगा। You must first repent. You must first realize that, oh, this thing that I'm doing is not of God, because I'm supposed to be Christ-like. और अब मुझे ये एहसास हो गया कि मैं यीशु मसीह की तरह हूं और मुझे ये दोबारा नहीं काम करना है। So this thing is not of Christ. और ये खुदा की तरफ से नहीं है। So immediately you repent from this, that I don't want to do this. और आप उस पे तौबा करते हैं कि अब मुझे ये काम नहीं करना। At that point that you repent, at that point that you say, no, I don't want to do और उस this, जगह पे आप कहते हैं कि नहीं अब मुझे ये काम नहीं करना है। Christ immediately come into you. और उसी लम्हा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है। Immediately wants to stay with you. और वो Immediately wants to guide you. इमीडिएटली आपकी जिंदगी में आता है, वो आपके साथ रहना शुरू कर देता है। So repentance is not, oh, I'm not going to drink again, but I will go to that bar. और रिपेंटेंस ये नहीं है कि मैं दोबारा ये नहीं पीऊंगा लेकिन मैं डांस की बार में चला जाता हूँ। No. नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। Once you have repented, और जब आप एक दफा माफी मांग लेते हैं, तौबा करते हैं, you don't say, oh, I just want to go and see them, I will not drink. No. और ये नहीं कहना कि मैं तौबा तो कर लिए पीने से लेकिन मैं बार में जाके बैठूंगा, देखूंगा और पीऊंगा नहीं। Because since Christ wants to be with you, He wants to guide you to move on. और वो यीशु आपकी मदद करता है कि आप आगे बढ़ते रहो और उन कामों को ना करो। You don't go back. और आप दोबारा उस जिंदगी में ना Because जाओ। immediately you go back, Christ will immediately leave you. और जैसे ही आप अपनी पुरानी जिंदगी में जाते हैं, खुदा का पाक रूह आपसे जुदा हो जाता है। So you must always, since you have confessed, I want to repent, I don't want to do this thing. और जब आप इकरार करते हैं कि आपने ये नहीं करना, तो इसका मतलब नहीं करना है आपने। You must stay with Him to guide you. और वो खुदावंद आपको हमेशा रहनुमाई करता है। At that point, if you have been reading the Bible one chapter, और अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, you have to increase it to like 4 or 5. और इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाना शुरू करते हैं, Because that time He wants to speak with you. और वो आपके साथ बात करता है। Confession. और वो आपके साथ आप अपना इकरार करते हैं Confession of sin कि अपने गुनाहों का इकरार करते हैं is an important step towards receiving forgiveness from God. कि जब आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो ये पहला एक कदम होता है जिससे आप अपनी माफी को मांग लेते हो खुदा से। Because once you confess, और जब आप इकरार करते हो, because Jesus Christ said, if you say something, you must be able to do what you say. और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जब आप अपने मुंह से इकरार करते हैं तो आप वही काम करते हैं।
His way is truth and life. और उसका कलाम जो है वो राह और जिंदगी है। So once you make that confession, और वो इकरार जो आपके मुंह से निकलता है वो क्या है? it has come out of you. और वो आपके अंदर से निकलता है। Do not allow that word to revert back to you. और उसे दोबारा एक इजाजत ना दे कि वो कलाम जो आपके मुंह से निकला दोबारा आपके अंदर आ जाए। You have said this is what I want to do. और आपने कहा है कि मैंने अब ये करना है। Let your word at all time be yes and amen. और जो आप करना चाहते हैं वो वैसे ही हो, ये और आमीन के साथ हो। You are not supposed to be of the word that say, oh, I will do this, then later they will do that. Like, no. और जब आप कुछ का इकरार करते हैं तो ये नहीं कि आप दाएं और बाएं हमेशा जम खाते रहे, कभी इस दफा कभी इस जगह कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। Once you confess, और जब आप इकरार करते हैं, once you tell the world I'm a Christian, और जब आप मुंह से कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, they must be able to see that और Christianity फिर in वो you. आपके अंदर वो मसीहत को देखना चाहते हैं, You must be able to stay in that way of life. और वो देखना चाहते हैं कि वो मसीह का तर्ज जिंदगी आपके अंदर मौजूद है। Not today we see you doing that, tomorrow we see you doing this. और ये नहीं कि आज आप खुदा के घर में या अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बाहर जाते फिर आप पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। Because once you confess, और जब आप कन्फेस करते हैं, the world is looking at you. और वैसे ही वो आपको देखना शुरू कर देते हैं। Do you want to disappoint Jesus Christ? क्या आप खुदावंद यीशु को जो है शर्मिंदा करना चाहते हैं? Do you want to tell him that the blood which is shed on the cross of Calvary today is in vain? और ये कहना चाहते हैं कि जो खून तूने कोहे कलवरी के मकाम पे मेरे और मेरे घराने के लिए बहाया उसका कुछ फायदा नहीं? That blood that is shed on the cross of Calvary, that blood that said Satan, it is finished. और वो खून जो तो हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, उसमें ये कहा गया कि अब सब कुछ तमाम हुआ। That blood that conquered Satan. और उसी ब्लड ने, इसी खून ने शैतान की सारी कुव्वत के ऊपर गलबा पाया है। Once we confess, और जब आप अपने मुंह से इकरार करते हैं, let us abide by it. और जब उसे अपने अंदर कायम करें, Once we say something, और आज मैं ये कहना चाहूंगा, let us stay with it. और इसके साथ ही रहें। You told somebody I've forgiven you your sin. और आप किसी को कहते हैं कि मैंने तुझे माफ कर दिया तेरे गुनाहों को, Why then does he now do something? You now look, he is doing it again. No, no. Once you forgive, you forget. जब आप किसी को माफ करते हैं तो ये ना कहें कि ये दोबारा मेरी जिंदगी में वही काम कर रहा है, यही वही काम कर रहा है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो उसे भूल जाए। You don't look at that person again and say, oh, I will not play with him because of this, because of that. No. और जो ये नहीं कहना कि मैंने इसे माफ कर दिया, मैं इसके साथ कोई राब्ता नहीं रखूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। Christ said he came for the world, for me, you and everybody. He didn't say he came for some people, he came for everybody. और खुदावंद यीशु सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि कुल कायनात के लिए इस दुनिया में आया है। Everybody shake their time. 30 minutes. Okay. God's mercy और खुदा का रहम and love, और उसकी मोहब्बत God's forgiveness और उसकी माफी is rooted in His mercy. और उसकी मर्सी रहम के अंदर सब चीजें जो है उसके अंदर जड़ पाती हैं, And love for humanity. और कायनात की मोहब्बत उसमें जड़ पाती है। He loved us so much. और वो हमसे इस तरह मोहब्बत करता है And He gave His life क्योंकि उसने हमारे प्यार के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, for me and you. मेरे लिए और आप सबके लिए, For us to be called a Christian today. और इसलिए ताकि हम उसके कहलाएं, मसीही कहलाएं। Without that life that is shed on the cross of Calvary, और वो जिंदगी जो वो खून जो कलवरी के मकाम पे बहाया गया, उसके बगैर ये नामुमकिन है। do you think there will be Christianity today? और आप ये सोचते हैं कि हम मसीहत में हैं आज? No. आप मसीहत में नहीं है। But we thank God. आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, He was able to shed that blood for you and me. और इसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाया। इसलिए शुक्र नहीं करते आप मसीहत में हैं, बल्कि इसलिए शुक्र करते हैं कि उसने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाया। Thank you, Jesus. God bless you.